This is Muskan, student of Miranda House, and I'm going to explain you one of the most difficult but yet the interesting chapter of the class 12 biology. And trust me, you'll enjoy the chapter very much if you understand because this chapter holds the core of the biology. So if you are interested in bioinformatics or biotechnology, you must have to read this chapter, understand chapter. Okay. So the basic of this chapter is wholly compiled by the DNA. So, what is DNA? So, okay, DNA is a long polymer of the deoxyribonucleotides. पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर से मिलके पॉलीमर बनता है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है मतलब ये जो जो आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस होता है उसमें ये होता है कि तो सेकंड ओएच होता है सेकंड जो ओएच होता है वहाँ पे उसमें डीएनए में ओ नहीं होता है इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं ओके सो द लेंथ ऑफ जो डीएनए होता है वो डीएनए जो होता है वो तुम्हारे यूजली डिफाइंड होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो ये तुम्हारे मेनली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे होता है लाइक अगर ये जितने तुम्हारे नंबर जैसे मोनोमर्स होते हैं जो डीएनए के मोनोमर्स क्या कहेंगे डीएनए के मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे ओके सो दो ये जितने भी उसमें मोनोमर्स होंगे जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको उस नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उससे हमें डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी ओके so the character of this is also a characteristics of organism. Okay, we can also categorize the an organism on the basis of the number of their nucleotides. Okay, for example, a bacteriophage. Okay, bacteriophage have a this much of the nucleotides, and this is a very important question. Okay, I should highlight this. 458 Escherichia coli has uh, okay, so this is the question. These questions are very important for like your school exams and for your NEET and everything. So you have to learn all this. Okay. So one of the teacher had teach me trick like there is 174. Okay. So when you minus one okay like this trick is that when you minus 4 minus 1 that's 3 that's okay 4 plus 1 is 5 then 4 minus 1 is 3 and 7 plus 8 is 7 plus 1 is 8 and 7 minus 1 is 6 so that's the trick okay and here is also 48 and 50 so what you add in 48 to become 50 it sets 2 so you can go for it and you must have to learn the 3 point the haploid content of DNA that is 3.3 into 10 to power 9 base pair okay and Escherichia coli have 4.6 so you can learn at the sixth thing okay uh, yeah yeah so the sixth thing is here okay Okay, so डीएनए recapitulate the chemical structure इसमें हम chemical structure देखते पहले ओके but the chemical structure of polynucleotide of the DNA polynucleotide chain so we already know that the DNA is a polynucleotide chain okay so the nucleotide has three basic component okay uh, one is one is nitrogenous base second is pentose sugar and third one is deoxyribon okay sorry first is nitrogenous base and a pentose sugar and the phosphate group okay so nitrogenous bases are what so nitrogen bases are there are multiple nitrogen bases like ATGC that ATGC is in DNA and AT and and instead of thymine, that AT just is stand for adenine. Okay, so there is it come further. Okay, so let's focus on nitrogenous bases. Okay, nitrogenous bases pentose sugar. Okay, pentose sugar is a five carbon sugar. Okay, that could be RNA and that could be a DNA. Okay. So, what is the ribose and deoxyribose? So, what the difference I tell you earlier that the deoxyribose में क्या होता है ना कि लाइक
there is no oxygen present at the second carbon, okay, and a phosphate group. Okay, so what third, like the pentose sugar and the phosphate group and the nitrogenous bases, pentose sugar and the phosphate groups. So there are two types of nitrogenous bases, the purine and the pyrimidines. Okay. Uh, okay. The purines are adenine and guanine, and the pyrimidines are cytosine, uracil and thymine. So प्यूरिन में जो है एडनिन और गुआनिन आ जाएगा, और पिरामिडिन में साइटोसिल, यूरासिल और थाइमिन आ जाएगा. ओके, जो यूरासिल है वो सिर्फ आपके उसमें देखा जाता है, काइंड ऑफ, हाँ, आरएनए में देखा जाता है, इट्स नॉट इन डीएनए. ओके. And by the way, for information, like the thymine is more stable than uracil. That and this thymine is the reason why DNA is more stable than RNA. Okay. Then we'll go to uracil is present in RNA instead of thymine, instead of place of thymine. Okay. नाइट्रोजनल बेस जो होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें हम जानते हैं कि like they're मिड ऑफ मेनी कार्बन. सो जो 5 कार्बन में होता है ना, 5 कार्बन आपका 5 कार्बन कंपाउंड होता है. ओके. सो ओके, सो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें जो फर्स्ट लिंक टू द ओ एच ऑफ द 1 कार्बन पेंटोज शुगर, जो तुम्हारा पेंटोज शुगर होता है. ओके. जो पेंटोज शुगर होता है, लाइक जो डीएनए, जो पेंटोज शुगर होता है उसमें जो पहला कार्बन होता है उससे नाइट्रोजनस बेसिस लिंक होते हैं. और नाइट्रोजन बेसिस जो बताया था कि एडनिन, थाइमिन एंड गुआनिन होता है. ओके. जब तुम्हारे ये जब पेंटोज शुगर में फर्स्ट कार्बन पे तुम्हारा ये लग जाएगा, क्या कहते हैं, एडेनिन, थाइमिन और ये जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है, सो द लाइक कि द पेंटोज शुगर एंड तुम्हारा क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर और जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो जब ऐड होंगे तो उसको हम ऐसे कहेंगे कि एडोनिसिन एंड डीऑक्सी एडोनिसिन. ओके. अगर ये तुम्हारे पेंटोज शुगर अगर तुम्हारे ऑक्सी पेंटोज शुगर में लगा ले जिसमें ऑक्सीजन है, ओके, तुम्हारे डीएनए वाले में लगा तो उसको तुम्हारा कहेंगे एडेनोसिन, सॉरी आरएनए में लगा तो एडेनोसिन. अगर डीऑक्सी में लगा, अगर ये डीएनए में लगा डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी एंड साइटिडिन एंड डीऑक्साइटोडिन एंड यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन. ओके. और जो तुम्हारा फॉस्फेट, जो तुम्हारा जैसे पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे तुम्हारा पेंटोज शुगर में क्या होता है कि सॉरी फर्स्ट कार्बन में तुम्हारा लग गया, क्या कर रही हूँ, सॉरी, जो फर्स्ट कार्बन में तुम्हारा लग जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस, जिससे तुम्हारे साइटिडिन, डीऑक्सीसाइटोडिन, डीऑक्सी गुआनोसिन वगैरह वगैरह लग जाएगा. और तुम्हारे 5th कार्बन पे जो है फॉस्फोएस्टर लिंकेज से फॉस्फेट ग्रुप जो होता है 5th कार्बन पे लग जाता है. ओके. फॉस्फोएस्टर लिंकेज याद करना पड़ेगा कि लाइक जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कौन से तुम्हारे नाइट्रोजन बेसिस कौन से उससे ऐड हुए हैं, लाइक कौन से बॉन्ड से ऐड हुए हैं. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स इम्पॉर्टेंट. ओके. सो एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तुम्हारे 1 कार्बन पेंटोज शुगर पे पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ऐड हुए हैं. ओके. और जो फॉस्फेट है वो तुम्हारा 5th कार्बन पे ऐड हुआ है बाय द लिंकेज, दैट इज़ फॉस्फोएस्टर लिंकेज. ओके. और उसके बाद तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे जो हमारा पेंटोज शुगर होता है उसके ऊपर आसपास सब कुछ होता है. ओके. तो तुम्हारा ऐसे याद करना पड़ेगा, फर्स्ट कार्बन पे तुम्हारा क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होंगे, एंड 5th कार्बन पे तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे, एंड जो थर्ड कार्बन क्या कहते हैं,
एंड जो टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज बनता है, सॉरी, जो टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज बनता है वो 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। ओके, तो अगर ये 3 to 5 जब एक का 3 दूसरे के 5 से ऐड होगा तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, एंड मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइन इन सच अ मैनर। ओके, तो जो थर्ड कार्बन से मेरा जो कार्बन है, ये जो मेरा पेंटोस शुगर है, इसका जो थर्ड कार्बन से इसका फर्स्ट वाला ऐड हो रखा है, ठीक है, सॉरी फिफ्थ वाला ऐड हो रखा है, यहाँ पे फिफ्थ का चेन खाली रहता है, ठीक है। तो 3 to 5, 3 से लेकर 5 से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो चेन का जो क्या कहते हैं, चेन का जो बढ़ने का जो साइड डायरेक्शन होता है 3 to 5 डायरेक्शन होता है, बट ऐसे क्योंकि ये इसका तो फिफ्थ है ही यहाँ पे और इसका थर्ड है, तो ये चेन को फिफ्थ 5 to थर्ड चेन कहते हैं, 5 से लेकर थर्ड चेन कहते हैं। ओके, जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट के जो 5 एंड जो होता है वो खाली होता है। ओके, 5 एंड होता है, इसको 5 एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 5th एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जहाँ से पॉलीन्यूक्लियोटाइड तुम्हारा स्टार्ट होता है, और ऐसे अदर एंड पे तुम्हारा थर्ड OH खाली होता है, क्योंकि इससे कोई दूसरा जुड़ा नहीं होता है, तो तुम्हारा 5 एंड से कोई जुड़ा नहीं होगा फर्स्ट पेंटोस शुगर के, और लास्ट पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन खाली होगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन कहते हैं 5 to थर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो ग्रोथ होगा, जो चेन का फॉर्मेशन होगा वो 3 to 5 होगा, फर्स्ट का जो फर्स्ट कार्बन, जो फर्स्ट पेंटोस शुगर है, उससे उसका जो थर्ड कार्बन है वो सेकेंड पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन से, ये फिफ्थ मोइटी वाला है, उससे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जाके तुम्हारा फॉस्फेट और जो शुगर होता है तुम्हारे, ये तुम्हारे बैकबोन बनाते हैं। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैकबोन बनाते हैं, एंड द नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। ओके, ये जो बैकबोन, अगर हमेशा क्वेश्चन आता है कि बैकबोन कौन बनाता है, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि जब बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर एंड द फॉस्फेट्स। ओके, RNA क्या होता है, RNA में RNA राइबोन्यूक्लियोसाइड में एडिशनल OH होता है सेकेंड कार्बन पोजीशन पे, और लेकिन वो DNA में नहीं होता है, तो दैट्स वाई, इसलिए DNA को डीऑक्सी कहते हैं। एंड जो RNA था, इन RNA द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, ये तो मैंने बताया था, और थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है कि यूरासिल को क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट कॉल्ड। तो थाइमिन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरासिल, ये क्वेश्चन एडल बदल कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डू दैट। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। ओके,